point. What actually we are going to start. As we already know, we are working over the topic that is called list in Python. And I have already discussed how actually the list can be created and how to make list in Python. That means what are the ways by which you can create list in the Python. That means I have already discussed about how to create empty list, how to add new data or new element to the list, and how to append at the end of the list. That means we have discussed number of topic today before this particular class, and now we are going to move for the another section or other part of the Python list that is going to discuss here. Wait for a minute. This app is going to be open, and actually I have some question for you for today's, but इसको थोड़ी देर बात करते हैं हम लोग. New create करता हूँ. Now today we are going to discuss the topic that is called how to create 2D list in Python. 2D list in Python. ठीक है. तो अब एक basically Python language provides you the way to create a special type of array index or array that is called list in the Python, that is mutable in data, mutable in term, so we can make any kind of manipulation for the rows and column and related things. And here we can also work on the indexes too. But how actually we can create list? Basically I have already discussed with you that if you wanted to create an empty list, you just need to do like this. If you wanted to create an empty list, then you can do like this. These are the two ways by which you can create empty list. And whenever you are starting the topic, you must have to use empty list, because whenever you have created a list with data, that means like this one, list 1 is equal to 1 comma 2 comma 3 and like this. So in this way we have created the size of this particular list, and whenever we are needed to add new data, then we have to use either append or insert method or function. Like if I wanted to add some new data to this list item, then we should use l1 dot append and the value. It will be added at the end of the current selected list, that means L1, and it will be stored at the index position 3, that is one zeroth position having the value 1, second one position having the value 2, second position having the value 3. So 45 is going to be added at the end. Same way, if you wanted to add new data, that means if you wanted to insert any specific value at the specific place, then you should use insert. ये particular topic पहले भी बताया जा चुका है, so nothing is new here, but something is going to be changed here. तो वो क्या change है यहाँ पे आप देखोगे. Now we are going to move to create two-dimensional data structure or data list like this way. L1 हो गया already. L2, this is called major part and this is called minor part. You can have multiple minor with multiple multiple pair of content. That means I am going to create a list 2 having two-dimensional content with zero index or zero value, like this one. Argument 1, arg1, arg2, arg3, arg4, arg5 and arg6. So we have stored these value inside the data. So this is the one of the syntax by which you can create any kind of syntax for creating two-dimensional or multi-dimensional array. Clear? Now here is the example to create. दो ही रो का बनाते हैं, थोड़ा लंबा बना के क्या करना है, ठीक है.
That means whenever it is going to be executed inside the system, then it will have uh, sorry, it will have a memory management like this way. Whenever you are going to create any specific two-dimensional array or list, then your data will be look like this. Here it is a midpoint. You can have a list here. थोड़ा सा गंदा बन रहा होगा, तो ज्यादा इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. ये बेसिकली जस्ट एग्जांपल पॉइंट के लिए है. अब यहाँ जो मैंने डेटा बनाई है, ये डेटा मैंने काफी मल्टीपल डेटा कैप्चरिंग के लिए बना दी है. और एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डेटा मतलब दैट मीन्स लिस्ट जो अवेलेबल है, दैट एक्चुअली होल्ड ओनली 2 रो एंड 2 कॉलम. ठीक है. Here first packet, that is argument 1, identify zeroth of zeroth. That means this is called zeroth index, this is called 1th index, this is called 2nd index, this is called 3rd index, and this is called 4th index. So these are the indexes that we found whenever we are going to create list inside the Python. Next one, it will be also called zeroth index, 1th index, sorry, and this will be called 2nd index. So whenever you put the particular argument 1, it will be going to store inside this particular area. ये यहाँ पे आके आपका स्टोर होगा arg1. सेम प्रोसेस. अब हमारे पास सेकेंड लेयर बनेगा, तो सेकेंड लेयर कहाँ स्टोर होगा? तो सेकेंड लेयर स्टोर होगा argument 2. दैट मीन्स दैट विल बी स्टोर हियर arg2. सेम प्रोसेस. ये हमारा नीचे आ रहा है डेटा, एंड इस पार्ट में यहाँ पे स्टोर होगा arg3, एंड दिस विल होल्ड arg4. So it will be the memory location or memory representation of this particular list whenever we are going to create this one. Example, L2 is equal to 2, 3, 4, 6. So here is the two-dimensional list is going to be created here. मैं इसको just copy करता हूँ, and now we are going to move to the actual playground, or you can say that ideally where we are going to implement this particular topic. जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब इस वीडियो को देखोगे, तो अगर आपको टॉपिक रिमाइंड करनी है तो इस पार्ट में आप देखो, यहाँ वो सारे पॉइंट बने हुए हैं जो भी आपने अभी तक डिस्कस किए. ये डेली बेसिस के क्लासेस पे है. ठीक है. उससे आपको पता चलते जाएगा कि इस डेट को क्या पढ़ाया गया है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट. अब मुझे यहाँ 2 डायमेंशनल एरे बनानी है, तो इट विल बी L2 या L1 जो भी रख लो, इक्वल टू दिस वन. ये मैंने ब्लैंक बनाई है, एंड हियर विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन, दैट इज कॉल्ड L1. तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट कर रहा है. अगर मुझे इसका लेन यानी कि लेंथ जानना है L1 का, तो ये लेंथ भी बताएगा. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ L1, तो ये आइडेंटिफाई कराएगा कि इट इज अ लिस्ट डेटा टाइप. क्लियर है. ये सब फंक्शंस आपको हमेशा गेट बाय हार्ट होना चाहिए, इसलिए मैं जानबूझ के दोबारा बताते रहता हूँ ताकि इसको आप भूलो नहीं. ये हमेशा याद रखने का है. नेक्स्ट वन, L1 इज इक्वल टू. अब हमारा L1 पहले से बना हुआ है, मैं उसी में कुछ डेटा ऐड करना चाहता हूँ या उसमें कुछ नया करना चाहता हूँ. चलो मैं कुछ नया करता हूँ. इक्वल्स टू. अब मैं यहाँ 2 डायमेंशनल डेटा बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4. तो ये जो हमारा 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट विल होल्ड द वैल्यू ऑफ बोथ रो एंड कॉलम. क्रिएट हो गया. नाउ प्रिंट इट. L2. क्लियर है. डेटा भी दिख रहा है हमारे पास. तो ये हमारा प्रोसेस है टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सेम प्रोसेस में अगर मान लो हमारे पास कोई एक डेटा स्ट्रक्चर है L1, मैं इसी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करा देता हूँ. मान लो कि यहाँ मैंने होल्ड किया वैल्यू 2. अब इसको चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइम ये हमारा अपने आप वैल्यू को स्टोर कर ले एंड हैविंग द वैल्यू 2 ओनली. हियर इज द आउटपुट एंड सी द मैजिक. ये मैजिक आपको दिख रहा है.
that basically identify the calculation of list. That means we can calculate, we can manipulate and add a new data directly to the array index or the list index by applying the particular calculation method, that is multiply by 5, यानी 2 को 5 टाइम यहाँ पे implement कर रहे हैं हम लोग. क्लियर है? अगर इतना तक आपको समझ में आ रहा है, raise your hand, do it fast. And now boys and girls, ask me any question if you have. Write your query in the chat box. मे बी मैंने अभी तक कुछ खास यहाँ पे नहीं बताई है, आपके समझने के लिए काफी कुछ ये डेटा पहले से भी अवेलेबल है आपके पास, तो मैंने कुछ खास यहाँ पे अभी नहीं करी है. क्लियर है? नाउ यू कैन हैव दिस. ओके, आई गेट 2 responses from your side. What are the responses? Nitin Nandan, sir, that means 2-dimensional list is nothing but another sequence bracket inside a square bracket. नितिन नंदन, आपने जो प्रिडिक्ट किया है ना, दैट इज राइट, बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रॉन्ग. आप जो बोल रहे हो वो गलत है, लेकिन आपने जो प्रिडिक्ट किया दैट इज राइट. बेसिकली नितिन, 2-dimensional means whenever you are creating a row and column together for the single variable axis. that means जब भी आप कोई लिस्ट बना रहे हो और वो लिस्ट हमारा बाय डिफॉल्ट, आप यहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं तो ज्यादा क्लियर होगा. ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? अभी बाय डिफॉल्ट जब हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं तो ये 1-dimensional होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, एंड दैट एक्चुअली कॉल्ड दिस वन, या सिंपली है दिस वन लाइक दिस वे, 1 2 3 4. तो ये क्या कर रहा है, मेमोरी पैकेट बना रहा है ये अलग अलग. तो ऐसे पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 1-dimensional वैल्यू. ठीक है, लेकिन इसी टर्म को अगर हम यहाँ रो एंड कॉलम में डिवाइड कर ले अलग अलग, तो ऐसे टर्म में देखो यहाँ पे ये हमारा 2-dimensional बन रहा है. ये आपको विजिबिलिटी भी मिल रही होगी, ये एक टेबल बन रहा है. दैट मीन्स यू आर हैविंग 2-dimensional डेटा. तो लिस्ट तो हमारा सिंगल ही है, लेकिन इसमें वैल्यू 2 स्टेज में स्टोर हो रहा है. दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड रोज एंड कॉलम. इससे पहले क्या था, यू कैन कंसीडर इट एज ए रो और कॉलम, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हो. अगर आपके पास 1-dimensional डाटा है देन इट विल बी कॉल्ड एज रोज डाटा और कॉलम डाटा. But whenever you are creating 2-dimensional data, then it will be considered as row individual and call individual. That is called column individual. This particular one is called one thing. This is actually called column. These are the column and these are the row. ये always आपको याद रखना है. काफी confusion होता है कि which is called row and which is called column. तो आपको याद रखना है 2-dimensional list means you are having row and column together with its value for the assigned list. जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसमें आप 2-dimensional डाटा डाल रहे हो. That means you are creating row and column individually for the different contents or different elements of the list. Next one, boys and girls, write your query in the chat box. Do it fast or raise your hand. Nidhi, unmute yourself. पूछो जो पूछना है आपको. अगर नहीं पूछना है हैंड डाउन कर लो आप. ठीक है, अर्नव, यू वांटेड टू से समथिंग? नो नो सर, गलती से हो गया. कोई बात नहीं. तो अगर आप लोगों को यहाँ तक टॉपिक समझ में आ रही है, रेज योर हैंड. डू इट फास्ट, डू इट फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स. आई थिंक यहाँ तक आपका डाटा क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलो ओके. चलो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो आप लोग. मैं आपका प्रोग्राम यहाँ लिख रहा हूँ. अरे भाई हट तो जाओ. ओके, क्वेश्चन, write a program in Python to create table from 1 to 10 using
यूजिंग नहीं, हाँ यूजिंग कर सकते हैं, पहले दे दो इसी से। यूजिंग लुक, यू आर फ्री टू यूज फॉर एज वेल एज वाइल। मतलब मुझे यहाँ पे जो टेबल चाहिए दैट विल बी लुक लाइक दिस वन। वेट फॉर अ मिनट। अब जैसे मैंने 1 का टेबल लिखा, ठीक है, तो 2 का टेबल लिखा, 3 का टेबल लिखा, 4 का टेबल लिखा, 5 का टेबल लिखा, 6 का लिखा, 7 8 9 एंड देन आफ्टर 10। क्लियर? सेकेंड पार्ट, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 and 10 2 जा 20. So it should be continued till 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, गड़बड़ हो गई, चेक करता हूँ इसको। इट विल बी 80, 90 and 100. It should be look like this. कंप्लीट टेबल बनानी है आपको यूजिंग द फॉर लूप। कैसे बनाओगे? यूज योर माइंड। आपको फॉर बताया गया है, वाइल बताया गया है, बस थोड़े सा लॉजिक बदलना है, देन यू विल एक्सेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। डू इट फास्ट। अगर इसकी विजिबिलिटी कम हो रही है तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ विजिबिलिटी, ठीक है। अब ये हमारा विजुअल होगा। क्लियर है? Do it fast. Either write it on your copy or take a snapshot of it. Do it fast. And then after you need to do it on your CW copy as you are having in your hand or on the desk. Do it fast. अब अगर किसी को हिंट चाहिए, write Y in the chat box. Then I will give you the hint. How will you create these table? Okay. चलो, okay, very good. 2-3 responses हैं हमारे पास। Sir, it is a tabular form. एकदम सही बोला आपने नितिन। It is always in the tabular form. Whenever you are having row and column, then it will be considered as tabular form. आप लोगों ने टेबल लिखा होगा ना बचपन में, बस उसी को लिखने के लिए कह रहा हूँ, यूजिंग द प्रोग्राम। एक बार और बता दीजिए, सिद्धार्थ श्रीवास्तव। वेरी गुड, जरूर बताएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको 1 to 10 का टेबल लिखना है। नो डाउट मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट भी दिया अभी आपको, क्योंकि जब भी आप जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ से इससे कुछ कलर वलर ले लूँ। चलो कि माय फेवरेट कलर ले लिया। आपने जब कभी भी टेबल बनाई है तो इस फॉर्म में बनाई है, ऊपर से नीचे। लेकिन अभी आप यहाँ जो काम करोगे ना, वो आपका इस बेसिस पे बनेगा। डू इट फास्ट। मैंने बहुत बड़ा हेल्प दिया आपको। यहाँ पे कोई लिस्ट यूज नहीं करना है। यू हैव टू क्रिएट टेबल यूजिंग द फॉर लूप और व्हाइल लूप, वट एवर यू वांट। जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। एंड नो डाउट आप जब इसका प्रोग्राम देखोगे तो आपको नो डाउट हंसते हंसते पेट दुखेगा। डू इट फास्ट। फिर से बता देता हूँ, नॉर्मल टेबल हम लोग कॉलम बेस पे लिखते हैं। कंप्यूटर में टेबल हम लोग रो बेस में लिखते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा 2 2 जा 4, 2 जा 6, इस तरीके से। जैसे 3 चलेगा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 12, 3 3 जा 15, 3 5 जा 15। इस तरीके से ये चलेगा आपको 30 तक। उसी तरीके से 1 to 10। डू इट फास्ट। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है।
किसके साथ करनी है, कहाँ करनी है, यू नीड टू डू इट फास्ट। ओके, वेरी गुड नितिन, जरा सा होल्ड करो, चेक कर लेता हूँ। आपका नेट स्पीड काफी स्लो रहता है हमेशा, विजिबिलिटी नहीं है। और जरा जूम करो, नजदीक लेके जाओ कैमरा को, कैमरा और नजदीक लेके जाओ। यू आर नियर टू आंसर, आप आंसर के बहुत ही करीब हो, बस थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन, आयुष, A2, सृजन, नंदिनी, कुमारी अंजनी, विजय, शुभम, आपने नेम गलत तरीके से लिखा हुआ है। प्रेरणा भारती, शो मी योर कॉपी फास्ट। अरे ये तो छूट ही गया था। कुमार सौरभ, कनेक्टेड हो, शो मी योर कॉपी। डू इट फास्ट। ऋषु, तुषार, स्वप्निल, छवि, शो मी योर कॉपी फास्टली। ऋतिक, नो नितिन, यू आर गोइंग रॉन्ग। आपको टेबल शो करनी है 1 to 10, न कि इनपुट लेनी है। आप इसमें एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल टेबल बना पाओगे जो भी यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। सो इट विल बी नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मिस्टर आयुष, यू आर ऑल्सो रॉन्ग आयुष। विजय, चीजों को सीखने की जरूरत है बस। ये क्या बनाया है आपने, ये रॉन्ग है। आप जो यहाँ पे स्टेटमेंट पास कर रहे हो, ये तो मेरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ही लिख रहे हो। दैट इज नॉट ट्रू। कौन है ये, विजय कुमार। थोड़ा सा बस मेहनत करना है आपको, आप सॉल्यूशन के बहुत ही करीब हो। डू इट फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स।
चलो ओके, यानी कि आप लोगों के पास कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है, काफी कंफ्यूजन है। तो हियर इज द आउटपुट, यू कैन सी इट। सबसे पहला क्या करना है हमें, एक सेकेंड, यहाँ लास्ट 2 मिनट भी है। सिंपल, यू नीड टू क्रिएट अ लूप यूजिंग फॉर व्हाइल, जो भी आप यूज करना चाहो। ए इन रेंज 1 to 11, क्योंकि आप जानते हो कि लास्ट पैकेट हमेशा ब्लैंक होता है, तो हमें कितने कॉलम की जरूरत है, 1 to 10 की। तो ये हमारा 1 to 10 रो बनाएगा, ठीक है, ये रो बनाएगा 1 से लेके 10 तक। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, अब इसी में क्या करेंगे, इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे, किसके लिए, कॉलम के लिए। एक चला रो के लिए, अब एक चलेगा कॉलम के लिए, यानी एक ए जो चल रहा है, ए फॉर द रो, एंड दूसरा चलाएंगे बी इन रेंज 1 to 11, दैट इज फॉर द कॉलम, ये हर बार कॉलम बनाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है, जब आप बी के अंदर हो, यानी बी लूप के अंदर हो, ठीक है, then you will have to print the value, that is the multiplication of a multiply by b, और हर बार क्या करना है, एक टैब स्पेस दे देना है, /t, /t is used for tab indent, ताकि एक के बीच दूसरे के एक दूसरे के बीच कुछ स्पेस मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे ये इस पार्टिकुलर सेकेंड लूप को हम लोग बोलते हैं इनर लूप, जैसे इनर लूप से बाहर आएगा तो हर बार क्या करना है, /n कर देना है, दैट मीन्स न्यू लाइन में उसको पुट कर देना है, नहीं तो पूरा का पूरा डाटा एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। चलो मैं इसका रियल टाइम एग्जांपल अभी जस्ट मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, लेकिन फिर भी इसको मैं फ्री से शुरू से बताऊंगा, ठीक है। इसको पहले बंद करता हूँ और फिर से शुरू कर देता हूँ, यहाँ से, वेट फॉर अ मिनट। प्रोग्राम में जाओ, न्यू क्रिएट करो, इसका सेव कर लो पहले ही, इसका नाम दे देते हैं टेस्ट 21, ठीक है। नाउ फॉर ए इन रेंज 1 to 11, अब सिंपली इसको आप प्रिंट करके चेक करो, प्रिंट ऑफ ए, ठीक है, सेव इट, रन इट, तो आउटपुट कैसे आता है, 1 to 10। अभी एक चीज क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस में अगर मैं